آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا یشعرون صلوات بر محمد وآل محمد۔ ذکر زینب زینت مجلس، اور ذکر زینب زینت ایمان، اور ذکر زینب زینت قرآن، اور ذکر زینب زینت حقائق اسلام۔ عزیزان گرامی، تو یہ سلسلہ 7 دن سے مسلسل جاری اور ساری ہے، اور بیچ میں کچھ بزرگوں کی فرمائش شامل ہو گئی تو میں نے کچھ باتیں فاضل بھی کہہ دی، موضوع سے ہٹ کے بھی، مگر دین سے ہٹ کے نہیں، دین اور ایمان سے ہٹ کر نہیں، وہ بھی کام کی بات ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ آج بھی کچھ فرمائش ہے، کچھ حکم ہے، برابر کے جو بات کہے وہ فرمائش مانی جائے گی، بزرگ جو کہے اسے حکم کہا جائے گا۔ سنیں عزیزان گرامی، تو میری یہ ذمہ داری بھی پوری نہیں ہے کہ میں نے ایک موضوع آپ کے سامنے چھیڑا ہے تو اسے ادھورا چھوڑ کے پھر ادھر ادھر بہک کر دوسری باتوں میں ہی اپنی مجلس کو ختم کر دوں۔ وہ بھی کروں گا کام کہ موضوع پر بھی رہوں، اور یہ بھی کہوں گا کہ بزرگوں کی جو فرم حکم ہے اس پر بھی عمل کر لوں۔ تو مثال کے طور پر ایک عقیدے کی بات سامنے ہے، ایک موضوع ہے، ابھی اس کا نام نہیں لیتا، جس کا حکم ہے کہ عقیدے کی ایک بات ہے کہ کربلا جو ہم لوگ 1400 برس تقریباً بولتے چلے آ رہے ہیں، اس پر کبھی اس رخ سے آپ نے غور کیا کہ اس واقعے کو اتنی اہمیت دنیا میں کیوں ملی؟ کیا مظلومیت کی وجہ سے، بے کسی کی شہادت کی وجہ سے، اسیروں کی اسیری کی وجہ سے؟ اس واقعے کربلا کا لب لباب حاصل جو ہے وہ کائنات کی پہلی اور آخری مثال ہے کہ حق پسندوں کا اتنا بڑا قافلہ متحد ہو کر، نہیں توجہ فرمائیں، متحد یعنی ایک چھوٹے بڑے جوان بوڑھے، دنیا کائنات میں اتنی بڑی مثال نہیں ملے گی کہ جتنے شریک واقعہ ہوں سب ایک رائے ایک خیال۔ کہاں بول رہا ہوں، غور کیے نا؟ اگر کربلا کے ماننے والے، حسین اور حسین کے رفقا اور شہداء اور عزیز و اقربا کے ماننے والے ماتمدار آپس میں اگر نفرت کے ساتھ رہے، انجمنیں اور پارٹیاں بنا کر رہے عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کی عظمت کو جانتے ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر 6 مہینے کے بچے سے، توجہ کا طالب اشارے میں 6 مہینے کے بچے سے اگر بیعت یزید سے متعلق پوچھتے تو وہ بھی کہتا نہیں، اور 8 برس والے سے کہتے تو وہ بھی کہتا نہیں، اور 14 برس والے نحال سے کہتے تو وہ بھی کہتا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کریل جوان اکبر سے کہتے تو وہ بھی کہتا نہیں، 22 برس کے امام زین العابدین سے کہتے تو وہ بھی کہتے نہیں، 34 برس کے عباس سے کہتے تو وہ بھی کہتے نہیں، 60 برس کے تقریباً امام حسین سے کہتے تو وہ بھی کہتے کہ نہیں، 90 برس کے بریر سے کہتے تو وہ بھی کہتے کہ نہیں۔ لفظ کو توجہ سے سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سن بدلا، سال بدلا، نسلیں بدلی، علاقہ بدلا۔ نہیں غور کیا عزیزان گرامی؟ جتنے کربلا میں ہیں، سن مختلف، نسل مختلف، علاقہ مختلف، کوئی مدینہ کا ہے، کوئی کوفہ کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی مکہ کا ہے، مگر متفق ایسے ہیں کہ کوئی نہیں میں ہاں نہیں کہتا اور ہاں کی جگہ نہیں کہتا۔ گویا عظمت امام حسین نے اپنے چھوٹے بڑے کو ایسے ایک راستے پر ڈال دیا تھا اور ایسے لگا دیا تھا کہ 1,24,000 نبیوں کو بھی یہ مقدر بات نہ ہو سکی۔ نہیں سمجھے؟ 1,24,000 نبیوں کے بھی نصیب میں یہ بات نہیں آئی کہ اتنا بڑا حق پرستوں کا قافلہ یا جماعت ان کے ساتھ کبھی دیکھی جائے۔ اور اگر ان سارے واقعات سے بھی اتحاد و اتفاق کی حقیقت کوئی نہ سمجھے تو خود اپنی زندگی سے سمجھ لے۔ نہیں غور کیا؟ اپنی زندگی سے آپ کیسے اتحاد اتفاق کو سمجھیے گا؟ کسی سے پوچھا گیا کہ زندگی کیا ہے تو کہا، جواب دیا، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب،
जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परिशा होना। क्या मतलब हुआ कि अगर चार चीज़ है, आग, हवा, पानी, पुराने दौर की अभी बात करता तो उनसुर बहुत तक दरियाफ्त हो गए कि अगर आग, पानी, हवा, मिट्टी एक जगह मिल कर रहे तो उसी का नाम जिंदगी है, और ये एक दूसरे से नाराज हो जाए जी तो उसी का नाम मौत है। अगर और आगे सुने अजीज़ान गिरामी तो दो जुमलों में कहूँ कि रूह और जिस्म मिल कर रहे, रूह और जिस्म मिल कर रहे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत के साथ, तो उसी का नाम जिंदगी है। और बदन, रूह और जिस्म एक दूसरे से जुदा हो जाए, रूह कहे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जिस्म कहे कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो इसी का नाम मौत है। जिस्म हमारा अब है जो बोल रहा है ये रूह के सहारे, और रूह जो है वो अपना वजूद पाए हुए है हमारे जिस्म के ज़रिए। बस अज़ीज़ान गिरामी, इत्तेहाद इत्तेफाक का एक हुक्म था एक बुज़ुर्ग का कि कुछ इस पर भी रोशनी डालिए, तो इसीलिए अल्लाह ने हर मंजिल पर तवज्जो का तालिब हूँ क्या नमाज के लिए ताकीद की गई कि जमात से पढ़ो। फरादा पढ़िएगा तो नहीं नमाज होती है, मगर वो इसलिए नहीं कि जमात मस्जिद भर जाए, इसलिए है कि दिल मिल जाए। ये जमात जो रखी गई है नमाज में, क्या फजीलत बयान की गई, उसमें एक राज है कि आओ तुम जो एक दूसरे से मुखालिफ हो, मिलना पसंद नहीं करते, हो सकता है कि दो आपस के इख्तिलाफ वाले लड़े हुए आदमी जमात में एक ही जगह जमा हो जाए, नहीं समझे, एक जगह खड़े होने का इत्तेफाक हो जाए, तो ये खवे से खवा, बाजू से बाजू, शाने से शाना मिलेगा। और जब नमाज तमाम हो गई तो एक दूसरे मोमिन जो मुसाफा करते हैं तो मुसाफा मजबूरन करना ही पड़ेगा, वरना शाने मस्जिद जाए तो हो सकता है हाथ मिलाते मिलाते दिल भी मिल जाए। फिर अल्लाह ने कहा कि देखो ये एक जमात को मैंने रखा, फिर जुमे के दिन हुक्म दिया जुमा पढ़ो, तो अब दूर दूर वाले भी आ जाए। फिर कहा कि एक मौका ऐसा रखूंगा कि सारी कायनात के लोगों को एक ही साथ बुलाऊंगा, तो और उसका नाम हज रखूंगा। न काले गोरे की तमीज होगी, न नाटे छोटे और बड़े की तमीज होगी, न गरीब अमीर का इम्तियाज होगा, सबको एक लिबास पहनाऊंगा। नहीं समझा दीदारे गिरामी, एहराम वाला सबको एक लिबास पहनाऊंगा और सबसे एक ही बोली बोलवाऊंगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा सलवात एक बुलंद आवाज से सारा। तब मैं अपने वतन में, मुसलमान जो मेरे वतन में बहुत है, तो उनसे जब हज करके पलटते हैं, मैंने कहा कि ये बताओ कि हज कराए, कहा हाँ। मैंने कहा लफ्ज़ हाजी तुम्हारे साथ लगा, अल्लाह के रजिस्टर में तुम्हारा नाम हाजी नहीं लिखा गया। पूछते हैं क्यों? मैंने कहा इसलिए तुम गए चंद चरदर कान बजा लाए और चले आए। हज एक फलसफा है, सियासत है, एक कानून यानी एक इबादत सिर्फ नहीं है। इसका एक मसला ये है कि सारी दुनिया के लोग एक वक्त आए और एक जबान बोले, ताकि इस्लाम दुश्मन, खुदा दुश्मन जो ताकत है वो देखे कि कितने हैं और एक आवाज़ ही निकाल रहे हैं। न रंगों का नहीं समझे, रंग है अलग अलग, कद है अलग अलग, अंदाज अलग अलग, मगर लिबास एक है, रंग और जबान एक है, लहजा एक है, और सब एक ही बात कहे चले जा रहे हैं, तब बातिल पर रोब तारी होगा। तो ये मजलिस में जितने लोग हैं, अगर सब एक राय हो तो आजादार दुश्मन जितनी ताकत है वो कहेंगे कि इनसे न बोलो, सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मददीदाने गिरामी, हो गई बात। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, अब वहाँ से कैसे कहता हूँ, किसी शायर ने कहा है बात को मरबूत करने के लिए, कहता हूँ कि अली के जाहो जलालत नमूद करती है, अली की जाहो जलालत नमूद करती है, ज़बां पर जब कभी ज़ैनब का नाम आता है। क्या मतलब दीदाने गिरामी कि जब ज़बान पर हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा का जिसमें गिरामी आता है तो ये नाम आया और अली का जाहो जलाल निगाहों के सामने आया। ऐसे कहता हूँ जैसे फातिमा का नाम आया, जैसे फातिमा का नाम आया और नबी की शान इस्मत और तहारत और सदाकत सामने आए। फिर कहता हूँ दीदाने गिरामी जैसे पैगंबर अपनी बेटी फातिमा के आने के बाद सारी अज़मत रिसालत के बावजूद खड़े हो जाते थे ताज़ीम के लिए, वैसे ही बारगाह इमामत में जब ज़ैनब आती थी तो मौलाए कायनात ताज़ीम के लिए
आई है बात तो सुने अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत ज़ैनब की कुछ गोशे आज सुना देता हूँ। एक गोशा ये है, सुनिए। सीधी सीधी ज़ैनुल आबिदीन हंसते हंसते बात बड़ी नाजुक नाजुक मंजिलें आसान जुमलों में दोहरा देता है कि कभी मेरे बच्चों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने इस पर गौर किया कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमको दिया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, खुद तो बाद में 9 ब्याह रखा कर लिया, 9 बीवियाँ एक वक्त में रहीं। हमसे भी कहा कि तुम में भी सलाहियत हो तो 4 कर लो, नहीं लुत्फ आया। मगर जब पैगंबर की जवानी का दौर था तब पैगंबर ने कोई दूसरी बीवी को देखा ही नहीं सिवाय खदीजा के, नहीं लुत्फ आया। आज जाने गिरामी कमाल देखिएगा कि नबी की जवानी का जब दौर था तो एक ही औरत यानी खदीजतुल कुबरा, और जब नाली के शबाब का दौर था तो अली ही ने भी वही सीरत इख्तियार की कि फातिमा की मौजूदगी में किसी औरत दूसरी औरत से शादी नहीं किया। और जब फातिमा की शहादत हो गई तो कई बीवियां अली के घर में भी एक वक्त में रहीं। तवज्जो का तालिब, कभी गौर करने का मौका आपको नसीब हुआ कि इसमें राज क्या है। राज अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ 4 शादियों की इस्लाम ने इजाज़त दी वहाँ अदल की कैद लगाई है। और मफ़हूम अदल कोई भी हो, लफ्ज़ को तवज्जो दीजिएगा, इसका मतलब ये है कम से कम कि नबी ने खदीजा की मौजूदगी में कोई दूसरी शादी न करके बताया कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई इंसान आदिल नहीं हो सकता। मगर इस पर तो गौर करो, मैं बीवियों के खाने कपड़े में तो अदालत कर सकता हूँ, मगर बीवियों के हसब व नसब व किरदार के फर्क को कैसे बराबर करूँ। देखा भाई, एक बारीक बात आपके सामने रखे मैंने, नहीं गौर करें क्या कहा। मैं बीवियों के खाने कपड़े, उनकी जरूरियात को पूरा करने में तो आदर कर सकता हूँ, मगर बीवियों के हसब और नसब में और किरदार और रफ्तार और गुफ्तार में अगर मुख्तसर यूँ कह दूँ कि नबी कहेंगे कि देखो ये खदीजा और दूसरी बीवियों में फ़र्क ये है कि वो सब आई मेरे घर में खाना कपड़ा लेने के लिए, नहीं लुत्फ आया, वो सब मेरे घर में आई हैं खाना कपड़ा लेने के लिए। खदीजा आई थी मुझे अपनी दौलत से सहारा देने के लिए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज देखा सामने की बात है, इस बात को समझ में कुरान ने कहा, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं कहा। ववजद का आयलन फागना, ऐ पैगंबर आप तो तंगदस्त थे, हमने खदीजा की दौलत से आपको खुशहाल बना दिया। तो ये क्यों बयान कर दिया इस्लाम ने खदीजा की दौलत पर? अब तफसीरा नहीं है, एक जुमला है कि इसका मतलब कि हर तहरीक के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। हर तहरीक, हर अंजुमन, हर इदारे, हर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें एक चीज़ है दौलत और एक चीज़ है कि तहरीक के बानी का कोई न कोई सहारा बने। तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने ऐलान रिसालत का हुक्म नहीं दिया जब तक कि उनके इस्लाम की तहरीक के मुहर्रिक के लिए 2 चीज़ों का सामान कर न लिया। नहीं गौर किया क्या? जब इस्लाम की तहरीक के लिए दौलत की ज़रूरत थी, सहारे की ज़रूरत थी। नहीं समझे क्या? फिर कहूँ जुमला कि इस्लाम की तहरीक के लिए जब पैगंबर को दौलत की ज़रूरत थी और सहारे की ज़रूरत थी, तो तहरीक इस्लाम में जहाँ दौलत की ज़रूरत थी खदीजा से अक़्द करके, और जब सहारे की ज़रूरत थी तो अबू तालिब से कहा। एक ही जगह जिक्र आ गया कुरान में दोनों का, ववजद का आयलन फागना, और सहारे के लिए कहा अलम यजिद का यतीमन फावा। ए पैगंबर के आप यतीम नहीं थे कि हमने आपको अबू तालिब के जरिए पनाह दे दी? दौलत की ज़रूरत है। अब एक जुमला कहता हूँ, कितनी मोहतरमा वो औरत थी जिसने कबल इस्लाम ऐसी तिजारत की कि अगर उनकी लाखों करोड़ों की दौलत में एक हराम पैसा भी होता तो पाकीज़ा रसूल, पाकीज़ा सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुमला सुनिए, मौजू से हटा नहीं, एक भी नया पैसा उसमें हराम का शामिल होता तो कुद्दूस खुदा, ताहा रसूल, पाकीज़ा कुरान, बेऐब दीन के लिए उस दौलत को कबूल न करता। कबूल करके अल्लाह ने बता दिया कि इस दौरे कुफ्र में भी इतनी पाकीज़ा ये औरत थी।
توجہ کہ اس کا کردار تو کردار، اس کا سرمایہ بھی اتنا عظیم ہے، ابھی نہیں بات، اس کا سرمایہ اتنا عظیم ہے اور پاکیزہ ہے کہ میں اس کے سرمایہ کو قرآن کی آیت بناتا ہوں۔ جی جی نہیں ہے وجد کا، کیا کہا؟ وجد کا عائلن فاغنا، یہ پیغمبر کی شریک حیات خدیجہ الکبریٰ کی، اب یوں کہوں عزیزان گرامی، خدیجہ کی دولت کے ظاہری صلے کا نام ہے آیت، نہیں لطف آیا؟ خدیجہ کی دولت کے ظاہری جو اللہ نے صلہ دیا ہے اس کا نام ہے قرآن کی آیت، اور خدیجہ کی دولت کا جو حقیقی صلہ اللہ نے دیا ہے اس صلے کا نام ہے فاطمہ۔ اب فاطمہ کی محنتوں اور ریاضتوں کے خلاصے کا نام ہے زینب۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ یہ بے مطلب نہیں چھیڑا تھا عزیزان گرامی، وجد کا عائلن فاغنا، مال کی ضرورت تھی خدیجہ کی دولت سے۔ پھر آپ کو ہر دور میں لفظ بتوجہ دیجیے گا، اے رسول آپ کو ہر دور میں اسلام کے لیے ایک محسنہ کی ضرورت ہے، نہیں توجہ ہوئی، ایک محسن کی ایک محسنہ کی نہیں، احسان کرنے والے ایک مرد کی، احسان کرنے والی ایک عورت کی۔ توجہ کا طالب ہوں، پیغمبر کو ابتدائے اسلام میں احسان کرنے والی عورت کی ضرورت پڑی، خدیجہ آگے بڑھ گئی۔ جی اسلام کو احسان کرنے والی عورت کی ضرورت پڑی، خدیجہ نے کہا کہ میں درمیان اسلام میں جب اسلام کو ایک احسان کرنے والی عورت کی ضرورت پڑی تب فاطمہ نے کہا کہ میں، توجہ کا طالب عزیزان کرام میری طرف دیکھتے رہیے کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ کے احسان کے بعد ایک احسان کرنے والی عورت کی ضرورت پڑی، خدیجہ کے احسان کے بعد احسان کرنے والی ایک عورت کی ضرورت پڑی جن کو ہم عظمتوں کے ساتھ فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد ایک احسان کرنے والی عورت کی ضرورت پڑی تو وہ معظمہ بھی فاطمہ ہی کے گھر سے زینب کے نام سے اسلام کو ملی، آگے بڑھی۔ یہ عظمت زینب ہے کہ زینب کے بعد پھر کسی عورت کی صلوات بر محمد آل محمد۔ اگر کسی کے سامنے کوئی بات ہو ایسی تو پیش کرے۔ کیا کہا؟ جیسے یوں لفظ کہہ دوں عزیزان گرامی، جیسے نبوت پیغمبر پر ختم ہو گئی ویسے احسان کرنے کا جو عمل خیر تھا وہ خدیجہ کی نواسی زینب پر ختم ہو گیا۔ اب اسلام کسی عورت کا احسان مند اس انداز سے نہیں ہوگا، گویا ایسے بقا کا انتظام زینب نے کر دیا کہ اسلام کو آواز دی، اسلام روز روز پردے دار عورت تیری خدمت کے لیے نہیں آئے گی، روز روز تیری خدمت کے لیے کوئی پردے دار عورت نہیں آئے گی، میں ایسے انجام دے دوں کہ اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو عزیزان گرامی سنا رہا ہوں 6 دن 7 دن سے مسلسل عظمت زینب آئی ایک روح، اب یہ بھی سن لیجئے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ پہلے خطابیہ ہے، خطابیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث نہیں، قرآن کی آیت نہیں، تاریخ کا جملہ نہیں، عظمت زینب کے لیے خطابیہ یعنی میرے کسی عالم کے بنائے ہوئے جملے ہیں کہ لکھنے والے عالم کہتے ہیں جیسے یوں کہا، پہاڑ سے پوچھا زینب کون، پہاڑوں سے اونچے اونچے پہاڑوں سے پوچھا گیا زینب کون، کہا عظمت میں مجھ سے بلند، مضبوطی میں مجھ سے زیادہ مضبوط۔ سمندروں سے پوچھا گیا زینب کون، کہا کہ باطل کے خلاف جہاد کرنے والی وہ عظیم ہستی کہ اس کے تھپیڑے میرے تھپیڑوں سے زیادہ اہم۔ پھر پوچھا چاند سے زینب کون، چاند سے نے کہا جو مجھ سے زیادہ عظمت میں ضیابار ہے وہ ہے زینب۔ سورج سے پوچھا زینب کون، کہا جس کی شعاعیں نہ مٹے کبھی قیامت تک اس کا نام ہے زینب۔ عزیزان گرامی علی سے پوچھا زینب کون، کہا کہ ثمرۃ و فوادی،
फातिमा से पूछा ज़ैनब कौन, कहा बोहजतो कल्बी। रसूल से पूछा फातिमा कौन, कहा मेरी रिसालत को बका देने वाली, मेरी नवासी। अल्लाह से पूछा ज़ैनब कौन, कहा ज़ैने आप। सलवात तो अभी तो आपको लिए दिए, मैं अभी ज़ैनब के बचपने ही तक और पैदाइश वगैरह की बातों ही तक रह गया। जरा अब और आगे बढ़े तो कहूँ कैसे कहूँ, वो ज़ैनब जो खत्मुन नबीन के दामन में पले, नहीं गलत कहा गया, वो ज़ैनब जो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर की रिदा में, जी जो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर की रिदा में बैठकर जिंदगी के 4-5 बरस गुजारे। फिर लफ्ज सुनिएगा, वो ज़ैनब जो चादरे ततहीर के, उस चादरे ततहीर के साए में बगैर अपनी इजाजत मांगे खुद माँ की तमन्ना से, नहीं कैद लगा के मैंने जुमला कहा, वो ज़ैनब जो चादरे ततहीर में साहिबाने ततहीर की इजाजत से, जिब्रील नहीं है ज़ैनब की पूछना पड़े, नहीं लुत्फ़ आया, जिब्रील नहीं है ज़ैनब के पूछना पड़े कि इजाजत है कि आके चादर में छठा बन जाओ। ज़ैनब इतनी अजमत वाली है कि जितने ततहीर वाले हैं सब अपनी अपनी चादर में बैठा कर, रुतबे और वकार को बढ़ाने के लिए नहीं, हासिल करने के लिए। तो क्या कहा, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर की रिदा में बैठकर जो 4-5 बरस जिंदगी के दिन अजमतों से गुजारे, उन हस्ती का नाम ज़ैनब, जो बार बार ततहीर की रिदा में हो, आज जो खातून जन्नत की लोरियों में पले। मैंने देखा किताबें आप भी पढ़ी, लिखा है, इमाम हसन जब पैदा हुए गहवारे में फातिमा लेटाती थी तो यूँ कहते थे, इन्ना फिर जन्नत नहरुन बेलबन, इन्ना फिर जन्नत नहरुन बेलबन ले अलीन वले ज़हरा व हसन, के जन्नत में दूध की नहरें हैं जो अली के लिए है, ज़हरा के लिए, हसन के लिए। और जब इमाम सलवात वर मोहम्मद लोरियों का अंदाज अज़ीज़ान गिरामी। तो फिर जब इमाम हुसैन आ गए तो इसी तरह की लोरियाँ, और जब जनाब ज़ैनब आ गए तो अब तक जब तक हसन थे तो सिर्फ एक ज़हरा की लोरी को किताब ने लिखा, और जब ज़ैनब आ गई गहवारे में माँ ने लेटा दिया तो रसूल अरबी आए। नहीं समझे अज़ीज़ान गिरामी, जब रसूल अरबी फातिमा के घर रोज आते थे सलाम करने। लोग क्या रुतबा जाने फातिमा के आस्ताने का, रसूल खत्म नबियों के सरदार। अच्छा फर्ज कर ले अज़ीज़ान गिरामी, ये सारा मजमा मेरा एहतराम करता है, अगर मेरे उस्ताद आ जाए अहमद सलाम के लिए और ताज़ीम के लिए उठ के खड़ा जाओ। अब इस मजमे में कोई है जो मेरे उठने के बाद बैठा रहे? जी है कोई इस मजमे में जो मेरे खड़े हो जाने के बाद बैठा रहे? नहीं मुमकिन है। लफ्ज़ सुनिएगा, तो 1,24,000 नबियों की जमात किसी काबे में बैठा दीजिए और फातिमा को बुला लीजिए। जब नबियों के सरदार खड़े होंगे तो हर नबी को, लफ्ज़ को तवज्जो दीजिए अज़ीज़ान गिरामी। इसी तरह काबा और बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मामूर चाहे सिदरतुल मुंतहा पर वलियों को एक जगह जमा कर दिए। नहीं समझे? वली कौन? हर नबी का एक जानशीन कम से कम, तो 1,24,000 वसी वली हो गए, और उन वलियों के सरदार का नाम है अली इब्न अबी तालिब। और अब अली इब्न अबी तालिब वलियों की जमात के साथ बैठे और ज़ैनब चादरे इफ़्फ़त ओढ़े आ जाए, और जब अली खड़े हो जाएंगे, है कोई वली ऐसा? सलावत बर मोहम्मद। एक बुलंद आवाज से सहारा दे दे आवाज़। अज़ीज़ान गिरामी, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अब इसके आगे पूरी जिम्मेदारी के साथ इसके आगे एक लफ्ज कहता हूँ, शरह है। शरह हदीस का असल तर्जमा नहीं है कि ये तो मैं पैगंबर की मशहूर हदीस सब सुन्नी शिया सुनते हैं, कल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तर्जमे पर दर्ज कर दिया मैंने। अब ये गुनाहगार शरह करता है कि जन्नत में सिर्फ मर्द ही मर्द नहीं जाएंगे, जन्नत में सिर्फ मर्द ही मर्द नहीं जाएंगे, औरतें भी जाएंगी।
تو میں اپنا ترجمہ شرح کرتا ہوں کہ جنت کے جوانوں کے امام حسن امام حسین سردار ہیں. اب جو لوگ مستحق کے جنت ہوں گے مردوں میں، چاہے وہ 100 برس کے بڈھے ہوں، حسن حسین کی نظر پڑے گی جوان ہوں گے جنت میں. مگر اب عورتوں کا کیا مسئلہ بنے گا؟ زینب ادھر ہوگی ماں کے قریب، بھائی آواز دیں گے تم میں میرے ہر کام میں برابر کی شریک رہی تو جنت کی عورتوں کی تم سردار بن جاؤ. صلوات بر محمد. دیکھو بھائی عزیزان گرامی، جیسے یوں کہوں آ گئی بات صلوات بر محمد والے محمد. میں نے پڑھا تفسیر سورہ یوسف. کیا پڑھا؟ تفسیر سورہ یوسف. تو جہاں زلیخا کی بڑھاپے سے جوانی کی بات آئی ہے تو اس میں لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ بوڑھی ہو گئی سر راہ، یعنی اب محل والی نہیں رہی زلیخا. کل جب یوسف کو قید کرایا تھا تو یہ محل والی تھی، اب یوسف محل والے ہو گئے، یہ ہو گئی ٹھوکر کھانے والی، بوڑھی بھی ہو گئی. یوسف گزر رہے تھے، سر راہ بیٹھی تھی صرف یوسف کو دیکھنے کے لیے. یوسف نے پوچھ لیا خیریت، یوں کہوں خیریت پوچھ لیا. کہا مت پوچھو یوسف کچھ، وہی اللہ ہے جو بادشاہ کو فقیر بنا دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے. تو یوسف نے پوچھا اچھا زلیخا یہ بتاؤ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اب بھی تمہارے دل میں کچھ میری محبت رہ گئی ہے؟ اب تو عمر ڈھل گئی. کہا مت پوچھو یوسف، جتنی کل تھی اتنی ہی آج ہے. جتنی کل تھی، عمروں کے ذریعے محبت کا پیمانہ نہیں بنتا. بس عزیزان گرامی، تو یوسف نے کہا کہ اے زلیخا مجھے دیکھ کے تو تمہارا حال ہی ایسا ہے، اور جس کے نور کے جس کے حسن کے صدقے میں مجھے یہ حسن ملا ہے، اگر اسے دیکھ لو تو کیا ہو جائے، ابھی بلاتا ہوں، اسے دیکھ لو گے تو کیا ہو جائے گا. تو زلیخا نے کہا بس میں ایمان لائی. سرکار دو عالم کی طرف اشارہ یوسف کا تھا کہ اس نور مجسم کو دیکھو گی تو تمہارا کیا حال ہوگا. تو زلیخا نے کہا کہ بس کرو یوسف، میں ان پر ایمان لائی. حسن یوسف دیکھ کر زلیخا کا شباب نہیں پلٹا تھا. سنیے عزیزان گرامی، اب آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں. رسول عربی اور یوسف کے حسن میں یہ فرق ہے کہ حسن یوسف جوان کو بوڑھا بنائے. جی، حسن یوسف جوان کو بوڑھا بنائے. اور آپ کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے کہتا ہوں، رسول عربی کے حسن کو زلیخا نے نہیں دیکھا تھا. یہ کہا کہ جب تمہارے ایسا حسین تعریف کر رہا ہے تو میں اس کے حسن پر ایمان لائی. اب آپ نے غور کیا آپ کے مذہب کی جوانی کیوں باقی ہے؟ نہیں غور کیا آپ کے مذہب کی جوانی کیوں باقی ہے کہ غیبت والے رسول پر اس نے ایمان لائے اور غیبت والے امام پر ہم بھی سلام. آگے آ جائے بھائی، آگے آ جائے آگے. اب سننا ہی ہے بات کو، ذرا زلیخا کی بات آ گئی اور پھر آگے آ جائیے. بہت دور تک لوگ ہو گئے، اب دروازے کے باہر ہو گئے. صلوات بر محمد والے محمد. عظمت عزیزان گرامی، کہاں کی بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے ایک نیا موضوع آ گیا، بیچ میں نہیں آ گیا نیا موضوع کہ زلیخا نے دیکھا نہیں آمنہ کے لال کو، کہا بس یوسف بس کرو میں ان پر ایمان لائے. معلوم ہوا غیبت کا ایمان بھی ایک حقیقت رکھتا ہے، اور حقیقت نہ رکھتا تو قرآن پہلی ہی آیت میں یہ نہ بولتا کہ یؤمنون بالغیب. یعنی ایمان کی ایک بات قید یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے تو متقی ہوں. نہیں لطف آیا، دوسرا جملہ کہہ دیا. کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ اب متقین کی تعریف ہے. زین العابدین جب 20 برس کا تھا، مثلا 19-20 برس کا سن تھا، تو تفسیر اسود تفسیر صافی پڑھ لی تھی. اب دوسری تفسیروں کے پڑھنے کا دور آیا تو اکثر ذہن میں آئے بات
کہ یہ ہدی للمتقین ہدی للمتقین، مولانا سے پوچھا استاد سے کہ یہ متقین کون لوگ ہیں؟ تو مولانا نے ایک لمبی تقریر جھاڑ دی کہ جو حرام سے بچے وہ متقی، جو نیکی کا کام کرے وہ متقی، جو واجبات پر عمل کرے وہ متقی، ایسے ایسے۔ میں نے کہا کہ حضور اتنی لمبی اگر تعریف آپ کیجئے گا متقین کا تو زین العابدین تو سمجھنے سے رہا، ارے 2 جملوں میں کہہ دیجئے متقی کون؟ تو مولانا پھر بولنے لگے وہی کہ جو واجبات پر عمل کرے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرے اور سنت پر عمل کرے اور ایسا ہو اور ویسا ہو۔ میں نے کہا سنیے حضور 19ویں پارے میں نے پڑھا ہے ایک دعا ہے جس کی بھی ہو کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے پالنے والے ہم کو ایسی بیویاں دے آنکھوں کی ٹھنڈک، جو ایسے بچے دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک، اب وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقین کا امام بنا دے، ہم کو متقین کا امام بنا دے۔ تو میں نے اپنے استاد سے کہا حضور میں تو یہ سمجھا کہ جو علی اور ان کے 11 بیٹوں کو امام مانے متقی وہی ہے۔ نہیں لطف آیا عزیزان گرامی، کیونکہ دعا کرنے والوں نے دعا یہ کی تھی کہ وجعلنا للمتقین، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو دعا کی تفسیر ہونا عملاً ضروری، دیکھا قولاً نہیں عملاً، دعا کی تفسیر نہیں غور کیا۔ پھر کیا کہا کہ وجعلنا، ہم کو ایک نہیں کہہ رہا بہت سے دعا، ہم کو متقین کا امام بنا دے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ متقین ہم ہیں، زمانہ چوکا کیسے تم متقین ہو؟ کہا کہ اگر ہم متقین نہ ہوتے تو تمہاری طرح ہم بھی اذان دیتے، تمہاری طرح ہم بھی اذان دیتے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے ہم آگے بڑھ جاتے، مگر ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین صلوات بر محمد۔ بھائی بات سامنے کی ہے نہیں؟ متقین اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ اب آیت ملا لیجئے ہدی للمتقین، اور یہ آیت پڑھیے وہ کون جو میں نے پڑھا کہ وجعلنا للمتقین اماما، تو جو علی اور اولاد علی کو امام مانے اب وہ متقی ہے۔ اب دنیا بحث کرتی رہے، وہ اپنی بحث میں آپ الجھیں، مگر اب ہاں ٹھہر کے ایک جملہ کہوں گا کہ صرف امام مان لینا اور امام کے حکم پر عمل نہ کرنا۔ جب ہر تحریک کے لیے دولت کی ضرورت تو اسلام بھیک نہیں مانگتا، اس لیے زکوٰۃ اور خمس کے نام پر ٹیکس لگایا کہ اسلام کی تحریک ہمیشہ رہے گی، اور اب تم سے چندہ نہیں مانگا جائے گا۔ جب زکوٰۃ واجب ہو جائے ادا کر دو، اور خمس واجب ہو جائے ادا کر دو، امانت دار کے پاس جمع رہے، جب تحریک اسلام کو ضرورت پڑے وہی خرچ کر دیا جائے۔ مثلا اشتہار لگانا پڑ گیا دین کی تبلیغ کے لیے، چھپا کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت پڑی لکھ دو، تبلیغی کوئی ادارہ بنانا پڑے اسی پیسے سے کام لو۔ چندہ مانگنا یہ گناہ ہے، نہیں سمجھے عزیزان گرامی؟ اسلام چندہ نہیں مانگتا، کہتا ہے ہم نے تمہاری خدمت کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں۔ کچھ جیسے ہر حکومت ٹیکس لگاتی ہے، ہمارا بھی ٹیکس اس کا نام زکوٰۃ اور خمس ہے۔ تو جب نماز کی بات آتی ہے تب تو سب لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں کرنے پر۔ کوئی سمجھدار ہے جو اس پر زور دیتے کہ اس پر بھی بات کی جا رہی، اس کی کیا بات کہی؟ تو اپنے اپنے مذاق کی بات ہے، ایک ہی جملے میں نصیحت بھی ہے مذاق بھی ہے کہ اگر اللہ کو ہمارا یہ پسند نہ ہوتا تو میں اور میری بیوی ایک ہی غذا روز کھاتے ہیں، نہیں سمجھے؟ وہ روٹی وہی پکاتی، ان کا ہاتھ زیادہ لگتا ہے۔ سنیے، روٹی چاول دال گوشت جو کچھ بھی ہے دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ایک ساتھ، اور دونوں کھاتے ایک ہی چیز۔ میرے ہر ہفتے خط بڑھ جاتے ہیں، اب جب سے آئی کبھی نہیں بڑھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو یہی مقصود کہ میرا اور ان کا امتیاز باقی رہے۔ صلوات بر محمد۔ آگے نہیں ہے۔ کہا بھائی دیکھو، میں نے نہ کوئی حدیث سنائی نہ قرآن کی آیت، نہ میں نے کوئی حدیث سنائی نہ کوئی قرآن کی آیت،
मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि अल्लाह ने ये नूर हमको दिया, जीनतुर रिजाल इसका नाम है, किताबों में इसका नाम क्या है, जीनतुर रिजाल, कुरान में इसका नाम है नेमत खुदा, और हदीसों में इसका नाम है सुन्नत रसूल खुदा। फिर अज़ीज़ान गिरामी क्या कहा, कुल सबको छोड़ दीजिए। अब जब हमारी बीवी, मैं आपको नहीं कहता, मैं अपनी ही आपकी बात अपने लिए कहता, मेरी बीवी एक ही ग़िज़ा खाए, एक घर में रहे, एक नल का पानी पिए, एक ही जगह ज़िंदगी गुजारे, और मुझे रोज़ ज़रूरत पड़ जाती है हज्जाम के पास जाने या बुलाने की, और उनको जब से मेरे साथ है, जब से कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब है कि वो बनाने वाला चाहता है कि ये ऐसे रहे, ये दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे पर्दा, रसूल अरबी ने अपनी बीवी से पूछा, अपनी लड़की फातिमा ज़हरा से, कि बेटी बताओ औरत का सबसे बड़ा जेवर क्या है, तो कहा कि पर्दा। ऐसे ही मर्द का सबसे बड़ा जेवर क्या है, उसका दाढ़ी न कहिए, ये कहेंगे खादिम भाई दाढ़ी, नूर खुदा, रजूलियत की शान, रजूलियत की शान, मर्दानगी की पहचान, मर्द होने की अलामत। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भागे ज़ैनुल वहाँ हदीस ज़ैनुल आबिदीन नहीं सुनाता कि कहे कि जो दाढ़ी न रखे तो वो फला की तरह, जो फला की तरह। ये तो मुल्ला लोगों की बात है। ज़ैनुल आबिदीन तो हंसते हंसते हुक्म बयान कर देता है, समझे तो बहुत कुछ है, ना समझे तो मेरी बात है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखो भाई, अज़मत है। तो अगर बात आई है तो सुने अज़ीज़ान गिरामी, मुतवज्जह हो गए। तो करबला के बहुत से बुजुर्गों का नाम, छोटों का नाम, बड़ों का नाम, सजाओं का नाम, हसीनों का नाम, कहाँ से कहाँ बात पहुँची, जरा अज़मत। कालत ले उखते ही कुछ है, भाई बहन वाली आयत पढ़ी, अभी भाई बहन का तो तस्करा भी नहीं आया, 7वीं मजलिस में पढ़ रहा हूँ, नहीं समझे। अज़मत इमाम हुसैन एक तरफ और अज़मत ज़ैनब एक तरफ। जब मुझे अब कहीं आ गया मौका, वरना मैं माजरत करूंगा ज़ैनब की बारगाह में, शहजादी जो आयत उठाई थी आपकी अज़मत की बयान करने, वो तो इब्तिदाई मरहलों में दिन पूरे हो गए। मैं कमा हक कहूँ नहीं, वरना किसकी शान है जो आपका रुतबा बयान करे। खुलासे में 2 लफ्ज है, खुलासे में 2, आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर मैं अपने ऐसों की बात नहीं कहता, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी और नबी गुजरे सब, और उनकी हिदायत पर जो नेक हुए सब जन्नत में जाएंगे। आदम से ईसा तक जितने नबी गुजरे सब, और जो उनकी हिदायत से नेक हुए वो सब जन्नत में जाएं। सबके सरदार हुसैन होंगे। और हव्वा से खदीजा तक, हव्वा से खदीजा तक जितनी औरतें अच्छी गुजरी और उनके अच्छे को देख के अच्छी बनी, वो सब की सरदार ज़ैनब होंगी। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन पर सरदार उनके वालिदे बुजुर्गवार, क्योंकि नबी ने कहा व अबू हमा खैरुम मिनहुमा, यानी ये जन्नत के जवानों के जो दोनों सरदार हैं। तो अब अज़मत को यूँ देखिए कि जब खदीजा की नवासी, फातिमा की नूरे नज़र, अली की आंखों की ठंडक, पैगंबर के दिल का चैन, ज़ैनब शादी की मंजिल में पहुंची। तो ये रुख भी सुनने के काबिल है कि नहीं भाई। शादी की मंजिल में पहुंची तो अबू तालिब के बेटे अली इब्ने अबी तालिब ने, क्या कहूँ किन की रुखों की तरफ आपके ज़हन को मतवज्जा करो। आबिद भाई, एक तारीख है बनु हाशिम के घराने की कि हर दौर में अच्छे भतीजे को अच्छे चचा ने पाला। इशारे में कहा गया भाई, क्या कहा, हर दौर में। तो जब बहुत आगे से चलूँ तो देर हो जाएगी, चंद कदम आगे बढ़ के देखिए। हाशिम तिजारत के लिए गए, मदीना पहुँचे, एक शादी की, बच्चा वहाँ पैदा हुआ, वो आगे बढ़े, शाम के इलाके में इंतकाल कर गए। अब ननिहाल में बच्चा पल रहा है, तवज्जो का तालिब हूँ। कुछ दिनों के बाद हाशिम के भाई मुत्तलिब उधर से गुजरे, वो बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा जब तीर चलाए तो कहे कि तुम क्या मेरी बराबरी करोगे, मैं मक्का के सरदार, काबा के मुतवल्ली का नूर नज़र, तुम क्या मेरी बराबरी करोगे, मैं मक्का के सरदार
काबा के मुतवल्ली हाशिम का नूर नज़र हूँ, मगर मेरा चचा जो है इस वक्त मेरी खबरगिरी से ज़रा लापरवाह है। अब मुत्तलिब गुजर रहे थे, बाबा बढ़ के कहा बेटा किसके बेटे हो तुम? कहा हाशिम इब्ने अब्द मुनाफ। सरदार मक्का कहा कि हाँ तुम्हारा चचा तुमसे गाफिल था, मैं वही तुम्हारा चचा हूँ। सीने से लगाया और फौरन ऊँट पर बैठाया, जा रहे थे तिजारत के लिए, मक्का पलट आए। अब जब किसी ने रास्ते में पूछा कौन है, कहा अब्दी। नहीं, अब मिलाइए अरबी ग्रामर में मुत्तलिब। जब अब्द को मुत्तलिब से मिलाया, वरना उनका नाम तो शैबतुल हम्द था। समझे दीदाने गिरामी, क्या कहा? अब्दी, मेरा बंदा। लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब। तो चचा ने भतीजे को पाला, ये अच्छा भतीजा अच्छा चचा। तवज्जो का तारीफ हूँ, दूर से नहीं तारीख दोहराता। फिर एक कदम आगे तारीख बढ़ी, अच्छा भतीजा आया, अच्छा चचा मौजूद। नहीं समझे कौन? रसूलुल्लाह अच्छे भतीजे, अबू तालिब अच्छे चचा। फिर चचा की गोद में भतीजा पला। तवज्जो फरमाइएगा, अब्दुल्ला अच्छे भतीजे, अली इब्ने अबी तालिब अच्छे चचा। नहीं सुना होगा भाई यूसुफ भाई, ऐसे ये तारीख की बात। कौन? अब्दुल्ला, ये जनाब ज़ैनब के सरताज शौहर, ये जाफर तैयार के नूर नज़र। अब आई बात, 36 बरस का सिन था जब जाफर तैयार का जंग मूता में शहीद हो गए, तो इनके कुल बच्चे यतीम हो गए। तो जो घराने की मीरास आ रही थी कि अच्छे भतीजे को अच्छा चचा पाले, अली इब्ने अबी तालिब ने जाफर तैयार के हर बच्चे को, और जाफर और अली में नहीं लफ्ज़ बदल रहा हूँ, हैदर और जाफर में ये मुनासबत थी। पढ़िए सीरत हैदर कर्रार, लिखा है कि जब मौलाए कायनात किसी बात पर बहुत सख्त बरहम और गुस्से में होते थे, दुनिया की कोई ताकत उनके गुस्से को कम करने वाली नहीं होती थी, तो लोग जाके जाफर तैयार का नाम उनके सामने लेते थे। जाफर तैयार का नाम ले लेते थे मौलाए कायनात के सामने, तो उनका गुस्सा फौरन ठंडा हो जाता था। उस जाफर तैयार की आजमत सुना के बात आ गई। तो जब जाफर तैयार शहीद हो गए, तो उनके बच्चे जो इतने भी थे, उनको सब अली इब्ने अबी तालिब ने अपने, अब इससे अंदाजा कर लें क्या कहूँ, जैसे नबी की आगोश में अली भी पले और फातिमा भी। नहीं गौर किया आपने जुमले पर? जैसे अली नबी की आगोश में अली भी पले और फातिमा भी, उसी तरह अली की गोद में अब्दुल्ला भी पले और ज़ैनब भी। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुम सलवात व मुहम्मद। अज़मतों का अंदाजा करें तो बात कहाँ पहुँची भाई? समझे? अज़मत ज़ैनब को समझा रहा हूँ ना। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। तो एक भतीजा एक बेटी, किसकी? अली इब्ने अबी तालिब। दो भतीजे दो बेटी। हुक्म रसूल के मुताबिक जब शादी के काबिल हुआ, कहा न मैंने, तो अक़्द वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा का अली से अक़्द है, वैसे अली ने अपनी बेटी ज़ैनब का अक़्द अपने भतीजे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से और उम्मे कुलसूम का मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार से। अब वक्त नहीं है, 2-3 मिनट सुने, फिर कल इंशाअल्लाह बाकी हिस्सा सुना दूंगा। ऐसे कहता हूँ दीदाने गिरामी कि दुनिया ने देखा, जब तक कुरान में, और जब तक नहीं कहता क़यामत तक कुरान रहेगा और कुरान में सूरे हालता मौजूद रहेगी, जब तक अहले बैत के घराने की सखावत, युतमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, ये ज़ैनब को कायनात में शरफ हासिल है कि जैसे उनके माँ बाप का घर सखी तरीन था, वैसे ही उनके सरताज भी अपने दौर में सारे मदीना और मक्का, पूरी दुनिया अरब में अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से बढ़कर कोई सखी और इशार करने वाला नहीं था। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब एक मदीने का गरीब आदमी खुशहाल आदमी से कर्जा मांगता था तो वो देने पर तैयार नहीं होता था, तो ये गरीब जाके वो खुशहाल से कहता था कि जब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की खैरात बटेगी, सलवात वर मुहम्मद जी, जब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की खैरात बटेगी तब मैं तुम्हारा कर्जा अदा कर दूंगा। तो कर्ज देने वाला अब्दुल्ला की खैरात पर इतना मुतमईन था कि बगैर कोई तहरीर लिखवाए हुए सलवात वर मुहम्मद
अज़ीज़ान गिरामी, जिसका दिल चाहे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की तारीख पढ़ ले सवाने उम्री। और फिर जब अक़द अमीरुल मोमिनीन पढ़ने बैठे हैं, ये दोनों दरियाओं के नहीं समझे, मरदल बहरैन ने जब इन दोनों समंदरों को मिलाने के लिए कौसर का साकी, तो ये कहा अब्दुल्ला सुनो, जो रुतबा फातिमा का था निगाह पैगंबर में, वही रुतबा ज़ैनब का है निगाह हैदर में। ए अब्दुल्ला, बड़े अरमानों से तुम्हें भी पाला, बड़े अरमानों से इनको भी पाला, कोई और बात नहीं। 2 शर्तों से ये निकाह कर रहा कि रोज़ाना 24 घंटे के अंदर एक मरतबा मेरी बच्ची को इजाज़त देना कि ये अपने भाई हुसैन की ज़ियारत करें। फ़ज़ाइल भी है, मसाइब भी अज़ीज़ान के, पढ़िए सीरत ज़ैनब में हर जगह मिल जाएगा। ए अब्दुल्ला, 2 शर्त है। एक पहली शर्त यह है कि रोज़ाना 24 घंटे के अंदर में एक मरतबा मेरी बच्ची को इजाज़त हो कि अपने भाई हुसैन की ये ज़ियारत करे। दूसरी शर्त है ए अब्दुल्ला कि जब मेरा हुसैन मदीना से सफ़र करे तो ज़ैनब को रोकने का हक़ तुम्हें नहीं होगा। इन दोनों शर्तों को कबूल करो। अक़द होता है। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने शर्त कबूल की, अक़द हुआ। मातमदारा ने हुसैन तो वो बात कह रहा था कि फिर सुनिए, ज़ैनब के उस घर में और इस घर में, यानी ज़ैनब के पैदर बुजुर्गवार, जिसको हमारे हिंदुस्तान की ज़बान में कहते हैं मैका और ससुराल। जी हल्का लफ्ज़ तो नहीं कहा, यही न राइज है मैके। तो ज़ैनब के मैके की ये तारीफ़ सखावत करम के एतबार कि जब इस दुनिया के रहने वाले इंसानों में कोई मुहताज नहीं रह गया, तो मलक आ गए, क्या बन के? यतीम, मिस्कीन, असीर। और ज़ैनब के उस घर ससुराल वाले यानी उनके सरताज का एक भी वाक़या सुनाया। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार एक मरतबा बीमार पड़ गए, तो कई दिन तक आप बिस्तर पर रहे, कोई आयादत के लिए नहीं आया। आयादत के लिए कोई नहीं आया सिवाय उनके ख़ास भाइयों के, भतीजों के। तो किसी ने कह दिया कि आप बुज़ुर्ग हैं, बनु हाशिम में इस वक्त आप बुज़ुर्ग हैं और लोगों को ख़बर नहीं है क्या कि आपकी आयादत के लिए नहीं कोई आ रहा है? तो आपने कहा नहीं, लोगों को ख़बर है, कुछ वजह है जो लोग नहीं आ रहे। ये नहीं बताया कि क्या वजह है, ये तो जवाब दे दिया। और थोड़ी देर के बाद फिर अपने ही कुनबे के एक आदमी से कहा कि जो मुनादी देने का काम करता है मदीना में, उसको बुला लाओ। वो आया तो आपने धीरे से उससे कहा कि जाओ मदीना और बैरून मदीना ये निदा दे दो कि मेरा कर्जा जिन लोगों के ज़िम्मे है मैंने माफ़ किया। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने कहा कि जाओ निदा दे के आओ कि जिसके जिसके ज़िम्मे मेरा कर्ज है मैंने माफ़ कर दिया। तो मुनादी निदा दे के अभी पलटा नहीं था कि इतने आयादत करने वाले आए कि अब्दुल्ला का आस्ताना जुम्बिश में आ गया। सुने अज़ीज़ान गिरामी, इसका मतलब ये हुआ कि मदीना में कितने भी तमंगर रहे हों, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार का कर्जा न पहुँचा हो। खैरात के अलावा की बात अज़ीज़ान गिरामी। और ये तो मैंने ज़ैनब के दौरे, वहाँ के दौर बचपने का एक किस्सा और चलते चलते याद आ गया। पढ़िए किताब, ये जो मैंने बताया दीबाची साहब की किताब में भी लिखा है। इससे पहले मैंने लखनऊ के मौलाना आगा महदी साहब की किताब ज़ैनब कुबरा में पढ़ा, और उससे पहले खसाइद ज़ैनबिया में पढ़ा, और उससे पहले अज़ीज़ान गिरामी दुख्तर अली नाम की किताब तिरमिज़ी साहब की लिखी उसमें पढ़ा, और फिर उससे पहले अज़ीज़ान गिरामी ज़िंदगानी दुख्तरान फ़ातिमा ज़हरा मुज़म्मिल हुसैन मिसमी ईरानी की लिखी हुई किताब से मैं ये वाक़या पढ़ा। एक मेहमान मौलाए कायनात के घर बेवक्त आ गया। घर के लोग खाना खा लिए थे, ज़ैनब को नींद आ गई थी, किसी वजह से सो गई। 4 बरस का सिन था, सिर्फ उनके हिस्से का खाना रह गया था। तो जैसे फातिमा से अली ने पूछा, ए खातून जन्नत, मेहमान आ गया है, एक कुछ घर में खाना है? तो जनाब फातिमा जवाब देते, हाँ मेरे सरताज, सिर्फ ज़ैनब के हिस्से की रोटियां रह गई हैं और बच्ची को नींद आ गई है, ये उठेगी खा लेगी। तो मौलाए कायनात खामोश। ये बात हो रही थी कि जनाब ज़ैनब ने आँख खोल दी और कहा, बाबा मेहमान की खिदमत ज़रूरी है, मेरे हिस्से की रोटियां उनको खिला दी जाए, मैं आज
फाका कर लूंगी। मातमदारा ने हुसैन ये जज्बा था। फिर इसी तरह जो युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा के आले मोहम्मद की तारीफ सूरह हलता में कि ये यतीम मिस्कीन असीर को अल्लाह की मोहब्बत में करबला के यतीमों से बढ़कर दुनिया में कोई यतीम नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरी फूफी हमेशा नमाज शब भी पढ़ती थी और खड़े होकर मैंने एक मरतबा देखा कि आप बैठ कर नमाज पढ़ रही हैं। मैंने कहा फूफी अम्मा अरे आप बैठ कर आज क्यों नमाज पढ़ रही थी? कहा बेटा तो आपको मालूम है अरे इतना खाना पानी कम आता है जो तमाम असीरों के लिए काफी नहीं होता। मैं अपने हिस्से का खाना यतीमों को खिला देती हूँ। ए मेरे लाल अब मेरे जिस्म में खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। मातमदारा ने हुसैन सोगवाराने ज़ैनब मंजिल तमाम की मैंने आपके लिए। और अब ये चंद मिनट मसाइब के सुने कि अब यतीम परवरी बड़ी दुनिया में इसकी तारीफ़ है। रसूल अरबी ने भी फरमाया जो एक यतीम को परवरिश कर दे और उसको परिमाण चढ़ा दे तो मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। तो आप मातमदारा ने हुसैन ये एक वाक़या था जो मैंने दोहरा दिया। कौन कि ज़ैनब बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं और सैयद सज्जाद ने पूछ लिया नमाज के बाद फूफी अम्मा आज क्यों आप बैठ के नमाज़ पढ़ रही थी? तो जवाब दिया खाना पीना इतना कम। अब मैं नहीं कहता कि कब इतना खाना मिला, ये तो 2-4 दिन मसलन गुजरे होंगे कि बैठ के पढ़ने लगी। अब मैं नहीं बता सकता कि फिर इन कैदियों को खाना कब इतना मिला कि सबके शिकम भरे हों और ज़ैनब ने भी कुछ खाया हो। इस पर मुअर्रिख खामोश और कोई किताब ऐसे नहीं मुझे रहनुमाई करते कि मैं आगे कुछ कहने की जसारत करूं। बस इतना कहता हूं जो एक मजलिस में वो रवायत पढ़ भी दी है कि यही वो सब मसाइब मिला जुला के करबला से लेकर यहाँ तक के थे कि ज़ैनब जब मदीना से चली थी तो सर के सारे बाल स्याह थे और चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी, कमर खमीदा नहीं थी, हौसला बुलंद था। ए मातमदारा ने हुसैन मगर जब ज़ैनब शाम से पलटी है और एक ज़ैनब की बात नहीं है, पढ़िए मक्तल की किताब है हमारे 5वें इमाम फरमाते हैं। अब एक वो दूसरी रवायत दूसरा रब्त जोड़ रहा हूँ। 5वें इमाम फरमाते हैं हमको ऐसे कैद खाने में रखा गया था और इतनी जहमतों में रखा गया था कि जब हम लोग कैद से रिहा हुए हैं तो हम में का कोई आदमी पहचाना नहीं जा रहा था कि कौन कौन है। क्यों? दिन को धूप और रात को, अब सोचिएगा 40 दिन पर अहले हरम नहीं रिहा हो गए थे। मेरे मुताले के मुताबिक 1 साल से ज़्यादा अहले बैत कैद खाने में रहे। तो 1 साल में साल के अंदर बारिश का भी मौसम आया है, बारिश का भी मौसम, सर्दी का ज़माना, गर्मी का ज़माना, इन तीनों ज़मानों को अहले बैत झेल गए। तो ये हकीकत है कि चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे कि कौन कौन है। और यही बात मैंने अर्ज़ की अज़ीज़ाने गिरामी, कहूँ तो कैसे कहूँ। फिर ज़ैनब की ये हकीकत कि जो खाना इतना कम आता था कि सबके खाने को पूरा नहीं होता था तो बच्चों को खिला देते थे। अब ये रवायत नहीं बताते कि यह सिलसिला कितने दिन तक चला, मगर मातमदारा ने हुसैन अरे जब ज़ैनब रिहा हुई हैं तो फिर कहता हूँ कि हौसले वही बुलंद हैं। ए बेटा सैयद सज्जाद जाओ हाकिम वक्त से कहो कि हमारे लिए घर खाली करा दे, हम अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, भाई का मातम दिल खोल कर पहले करेंगे। मातमदारा ने हुसैन आई है बात तो इसको यहाँ फिर छोड़ता हूँ। ज़रा तसव्वुर करें एक कमसिन बच्ची, अब ज़ैनब के बुढ़ापे की बात रहे, अब कमसिनी की, अरे 5 बरस का सिन था, ज़ैनब का 5 बरस का सिन था तो नाना का जनाजा उठते हुए देखा। मगर कैसे देखा? जो रहमतुल्लिल आलमीन दुनिया जहान जिनका कलमा पढ़े, ज़ैनब ने देखा कि ऐसे अज़मत वाले नाना के जनाजे में 20 से ज़्यादा भी आदमी नहीं। फिर अभी 3 महीने से कम ही वक्त हुआ या 2 महीने से कुछ ज़्यादा, रवायत के अख्तिलाफ कि ज़ैनब ने क्या देखा कि वो माँ जो शरापा शफ़क़त
जो सरापा मोहब्बत, जिसने बड़े अरमानों से अपनी बेटी और बेटों को पाला था चक्की पीस पीस के, वो भी अपनी टूटी हुई हड्डियों पर हाथ रखे और रफ़ीक़ आला रहमत इलाहिया में जाने की तैयारी में है। मातम दारा ने हुसैन मैं नहीं कहता, अगर मुअर्रिख़ लिखता तो यही जुमला लिखता कि ज़ैनब की माँ फ़ातिमा हड्डियों को संभाले और अपने मसल्ले पर हैं और अस्मा से कह रही देखो जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आए समझना मैं ज़िंदा हूँ। और जब ये गुफ्तगू हो रही थी ज़ैनब हसरत भरी नज़र से अपनी माँ को देख रही थी। अम्मा अगर मेरे बस में होता तो आपकी टूटी हुई हड्डियाँ अपने जिस्म में ले लेती। मातम दाराने हुसैन अब ये लम्हा भी गुजर गया, अभी इत्मीनान का सांस भी नहीं लिया था कि 19 रमजानुल मुबारक सन 40 हिजरी आई। अरे मस्जिद से शोर उठा, ज़ैनब ने फिजा से कहा जरा आगे बढ़ो, अरे ये तो रोने की आवाज है। मातम दाराने हुसैन अरे फिजा बढ़ी, आकर ये वहशतनाक खबर सुनाई, ए शहजादी आका के सर पर किसी ने तलवार मार दी है। इधर मौला को उठा के लेके चले। जब घर करीब आ गया लोगों से कहा अब अपने अपने घरों चले जाओ। अरे मैं पसंद नहीं करता कि मेरी शहजादियों के रोने की आवाज नामारूमों के कान तक जाए। मातम दाराने हुसैन ये वक्त भी गुजरा, हसन के शहादत का जमाना, ज़ैनब हर गम में बराबर की शहीद। अरे रात ढलती जा रही है, जिगर के टुकड़े अंदर अंदर होते जा रहे हैं। बड़ी बेकसी का लम्हा, कहाँ की बात पढ़ते पढ़ते ज़ैनुलाब्दीन कहाँ पहुँच गया। ज़रा तसव्वुर करें आप हजरात, एक इतने से छोटे 5 बरस के सिन से जो गमों को बर्दाश्त करने वाली ज़ैनब अब शाम के कैद खाने से रिहा हुई तो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई, सारे काले बाल सफ़ेद हो चुके हैं, कमर खमीदा झुक गई इतनी टेढ़ी कि असा लेकर चल रही हैं। अब नहीं कोई जानने वाला है कि ज़ैनब बिनते अली कौन है। मगर सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा क्या कहा जाकर कह दो कि हम अभी नहीं जाएंगे यहाँ से, हमारे लिए घर खाली करा दे और उससे कहो कि औरतों को पुरसे के लिए भेजे, मगर एक शर्त लगा दे कि जो औरत हमें पुरसा देने आए वो काला लिबास पहन कर आए। मातम दाराने हुसैन ज़ैनब के कहने के मुताबिक घर का इंतजाम हो गया। माँ और शाम की औरतें पुरसा देने भी आ गई। एक मंजर और मजलिस तमाम करता हूँ, शाम की औरतें पुरसा देने। फिर कहा ज़ैनब ने बेटा जाओ कहो हमारे शहीदों के सर हमें ज़ियारत के लिए दे दे। तरतीब नहीं बयान करता, ऐसे कहता हूँ कि जैसे सर जब इजाज़त हो गई खजाने से बारी बारी सर आने लगे। कासिम का सर आया, अरे उम्मे फरवा ने बढ़ कर लिया, अली अकबर का सर आया, लैला ने बढ़ कर लिया, ए मातम दाराने हुसैन अब्बास का सर आया तो बेवाए अब्बास ने बढ़ कर लिया। मगर जब औनो मोहम्मद के सर आए कोई लेने वाला नहीं। बढ़ा आगे शाम की औरतों ने कहा अरे इन किन मजलूमों का सर है जिनका कोई लेने वाला नहीं। ज़ैनब ने सीने पर हाथ रखा, ए बीबियों ऐसा न कहो, अरे मैं दुखिया माँ मौजूद हूँ, ये मेरी गोद के पाले। बस मातम जब देर हो जाए सुने थोड़ी सी बात रह गई इस सिलसिले की। हाँ ज़ैनब ने, मैं अपने नाकिस मुताले की एक बात कहूँ, मदीना से करबला से शाम तक, शाम के कैद खाने तक, शाम के कैद खाने के बाद मदीना पहुँचने तक मैंने कहीं नहीं देखा कि ज़ैनब कभी औनो मोहम्मद को याद करके रोई हो। सुने बड़ी ऊंची बात बोल गया, क्या ज़ैनब के दिल में माँ का दिल नहीं था? क्या ज़ैनब के कलेजे में माँ का दिल नहीं था? दुनिया की और माँ की तरह ज़ैनब को अपने बेटों से उल्फत प्यार नहीं था। मगर मातम दाराने हुसैन राज था, अगर ज़ैनब अपने बच्चों को याद करके रोती तो लैला को कौन बहलाता, रबाब को कौन तसल्ली देता, उम्मे फरवा को सहारा कौन देता। मगर एक मौका आया जब उजड़े हुए घर में ज़ैनब जिंदगी गुजार रही थी। सैयद सज्जाद को अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने याद किया और जब आप तशरीफ़ ले गए थोड़ी देर के बाद पलटे तो जनाब ज़ैनब के सामने आके जानू तोड़ के बैठे। ज़ैनब ने पूछा बेटा कुछ कहना चाहते हो?
तो कहा हाँ हाँ बुबी अम्मा, अब्दुल्ला इब्न जाबर तैयार ने याद किया था, मैं वहाँ गया था, उन्होंने तमन्ना जाहिर की है कि आप उनके घर तशरीफ ले जाइए और अपनी जबान से और मोहम्मद के अरे जुरत और हिम्मतों का तज़किरा कर दीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा ये तुम्हारी मर्जी है, हुक्म है। हाँ बुबी अम्मा, सर से पैर तक ज़ैनब ने चादर ओढ़ी। अरे खुदा जाने उजड़े हुए घर की तरफ कदम कैसे बढ़े। अब ये माँ की ममता है, अपने दरवाजे पर पहुंची, घर उजड़ा हुआ वीरान सा, अरे देवड़ी में कदम रखा, जैसे आगे बढ़ी वो हुजरा सामने जहाँ गवारा झुला झुला के और मोहम्मद को पाला था, माँ का दिल था भर आया, कलेजा फट गया, वहीं बैठ के रोने लगे। आए और मोहम्मद। अब्दुल्ला इब्न जाबर तैयार के गश से आंखें खुल गई और कहने लगे ए बीबी, अरे तुझे कोई और घर नहीं रोने को मिला, मेरा ये उजड़ा हुआ घर, मेरे बच्चे करबला में शहीद हुए, इतनी बड़ी कायनात में सबसे ज्यादा बाइफ़त, सबसे ज्यादा अजमत के काबिल मेरी शरीक हयात ज़ैनब दर दर फिराई गई और तू मेरे घर में आके रो रही है। ज़ैनब ने सर से चादर हटा दी। ए अब्दुल्ला, अरे मैं कोई और नहीं हूँ, मैं हूँ मोहम्मद की दुखिया माँ, अली की बेकस बेटी ज़ैनब हूँ। आपने याद किया है और मोहम्मद के जुरतों को सुनाने। ए मेरे सरताज, मेरे दिल में ताकत नहीं, दो जुमलों में सुनिए, मेरे और आपकी गोद के पाले करबला के मैदान में अपने नाना हैदर कर्रार के हौसलों और अपने दादा जाफर तैयार के वलवलों के साथ जिहाद करते हुए अपने मामू के कदमों पर कुर्बान हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदम बक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि।